Hi everyone and welcome back to my YouTube channel Simply Commerce. So let's begin with the chapter Basic Accounting Terms and we'll do the remaining terms in this chapter. So the first term that we are going to do today is voucher. It is called voucher. What is a voucher? मैंने आपको पहले बताया कि बिजनेस है तो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होंगे. Okay, so what are vouchers? Vouchers are the written documents which are the proofs of the business transactions. They are written documents which are proof of business transactions taking place. They are the proofs. Okay. So vouchers are written documents which are proofs of transactions, business transactions taking place. जब भी आप कहीं किसी भी शॉप से कुछ चीज़ खरीदते हैं तो आपको उसका एक बिल मिलता है. Isn't it? So it's a proof that you have purchased this particular item at this particular price from this shop. Same as with business. Business may be multiple business transactions takes place. So business will give vouchers and will receive vouchers. Okay, which are proof of the business transactions. Now vouchers are of two types. They are of two types. One is your source voucher. And the other one is your accounting voucher. Okay. Now what is a source voucher? Source voucher होते हैं जो written original आपको business को जो original documents मिलते हैं for a business transaction. ठीक है, जैसे कि business ने furniture खरीदा AB कंपनी से. There is a business which has purchased a furniture for rupees 50,000 from AB company. Okay, now furniture आ गया उनका और उन्होंने पेमेंट भी कर दी तो they will receive what? Purchase receipt. Purchase bill मिलेगा उनको AB company से. That is the source voucher. Source voucher is your first hand bill एक तरह से. It's your first hand bill. Okay. The source voucher, they are written documents which are evidence of business transactions. They are the written documents which are evidence. एक तो वो written documents होंगे and they are the evidence of business transactions. And the second important point is they are first hand. They are first hand मतलब कि जहाँ जिससे आपने transaction करा उससे आपको ये मिलेगा या आप उसको दोगे. Okay. If you have purchased, you will receive the purchase bill. If you have sold, you will give. Understood? So, source voucher are first hand written documents which are proof or evidence of business transactions. Now, there are various examples of source voucher. Source voucher के example क्या है? Cash receipt. आपने किसी को आप मतलब business ने किसी को cash में payment किया है तो you'll receive cash receipt. Salary slip. What is a salary slip? It is a source voucher. समझ में आ रहा है? बिजनेस ने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे की तो उनको क्या मिलेगा? सैलरी स्लिप मिलेगी. ऑल द एम्प्लॉइज. सो इट इज एन एविडेंस कि इतना आपने बिजनेस ने उनको सैलरी अपने एम्प्लॉइज को पे करी है. व्हाट एल्स विल कम अंडर सोर्स वाउचर? योर परचेज बिल्स, योर सेल्स इनवॉइस. अगर बिजनेस ने
बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है अपने करंट अकाउंट में, तो वो क्या होगा, बैंक डिपॉजिट स्लिप भी मिलेगी आपको बिजनेस को, बैंक डिपॉजिट slip. So all these are source vouchers. Source vouchers are the first hand proofs. First hand proofs. समझ में आ रहा है? अब ये हम आए अकाउंटिंग वाउचर्स में. What are accounting vouchers? Accounting vouchers are prepared from source vouchers. They are prepared from source vouchers. Okay. They record the transactions in the accounting system, internally from source vouchers or using the source vouchers. तो अकाउंटिंग वाउचर्स दे रिकॉर्ड, दे आर द रिकॉर्ड्स. यहाँ पे कीवर्ड है रिकॉर्ड. अकाउंटिंग वाउचर्स रिकॉर्ड एंड सोर्स वाउचर्स आर प्रूफ्स, दे आर एविडेंस. अंडरस्टूड? तो अकाउंटिंग वाउचर्स सोर्स वाउचर्स से बनते हैं. आपके पास एक सैलरी स्लिप जब होगी तो पता चलेगा कि बिजनेस ने इतनी सैलरी दी है, तो सैलरी अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा या बैंक अकाउंट बनेगा. इफ यू आर पेइंग थ्रू चेक तो आप वो अमाउंट उसमें एंटर करेंगे यूजिंग द एविडेंस. परचेज बिल, अगर आपने फर्नीचर खरीदा है तो आपको क्या मिलेगा, आपको मीन्स बिजनेस को परचेज बिल मिलेगा. तो वो परचेज बिल जब मिल जाएगा उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करोगे. सो दैट रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड अकाउंटिंग वाउचर. Okay, it is done internally inside the business. Okay, so what are the various examples of accounting vouchers? Example is your sales voucher, purchase voucher, journal voucher, okay. So these are the various types of vouchers which you prepare using the evidences or proofs. इनको देख के आप ये एंट्रीज करते हैं. Understood? Now I'll give you just an example. AB company purchased furniture for ₹50,000 from C Limited. सी लिमिटेड एक कंपनी है, उससे AB लिमिटेड ने फर्नीचर परचेज करा. तो AB जो कंपनी है और C लिमिटेड है, तो C लिमिटेड इसको एक परचेज बिल देगी. व्हाट विल इट गिव? परचेज बिल. एंड दैट परचेज बिल जो फर्स्ट हैंड आ रहा है, दैट इज योर सोर्स डॉक्यूमेंट. दिस इज योर सोर्स डॉक्यूमेंट. और उसमें सब लिखा होगा, इस डेट पे फर्नीचर खरीदा गया, फर्नीचर में क्या क्या खरीदा गया, व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट वाज पेड बाय AB कंपनी, एवरीथिंग. ओके, नाउ अब ये सोर्स वाउचर को देख के AB कंपनी अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड करेगी यूजिंग दिस सोर्स डॉक्यूमेंट. इट विल रिकॉर्ड फर्नीचर, एक तो फर्नीचर अकाउंट होगा और एक अगर कैश में पे करा है तो कैश जा रहा है बाहर, कैश अकाउंट. तो ये जर्नल एंट्रीज वो जर्नल करेगी, जर्नल वाउचर में एंट्रीज होगी. एंड दिस इज व्हाट इज अकाउंटिंग वाउचर. अकाउंटिंग वाउचर. अंडरस्टूड? सो कीवर्ड्स आप याद रखिए. कीवर्ड्स हैं आपके सोर्स वाउचर का कीवर्ड है आपका प्रूफ. रिमेंबर इट, ये प्रूफ है, फर्स्ट हैंड प्रूफ. और अकाउंटिंग वाउचर का कीवर्ड है आपका रिकॉर्ड. इट इज अ रिकॉर्ड. It is a record. So accounting vouchers are prepared using the source voucher. So this covers the topic voucher.
The next term that we are going to do is creditors. What is the next term? Creditors. बिजनेस ने, अगर मेरा है बिजनेस सैंडल्स का, मेरा बिजनेस किसका है? सैंडल्स का, एंड मैं सैंडल्स किसी और कंपनी से परचेज करती हूँ, बिकॉज गुड्स कैन बी, ये जो सैंडल्स है वो गुड्स हैं, बिकॉज दैट इज द मेन आइटम आई एम डीलिंग इन. तो दीज सैंडल्स आई कैन मैन्युफैक्चर और आइदर आई कैन परचेज फ्रॉम समवन एल्स एंड सेल इट लेटर. ओके, सो मैंने कुछ सैंडल्स ए बी कंपनी से खरीदी ऑन क्रेडिट. क्रेडिट मतलब उधार पर, उधार पर, और मैंने उसको बोला कि मैं आपको 2 महीने में पे कर दूंगी. तो ये जो ए बी कंपनी है जिसने मुझे सैंडल्स दी हैं ऑन क्रेडिट, दे आर माई क्रेडिटर्स. उनको, मेरे को उनको पैसे देने हैं. आई हैव टू पे देम after within 2 months. So they are my creditors. What is a creditor? It is an entity or person to whom an amount is payable for credit purchase of goods or services. आप सर्विसेज भी ले सकते हो क्रेडिट में. अंडरस्टूड? तो ये डेफिनेशन में व्हाट आर द कीवर्ड्स? द कीवर्ड्स आर creditor is an entity or a person to whom an amount is payable. Amount is payable for credit purchase of goods or services. Understood? So let us take an example. This is the business AB company. AB company, and this is C Limited. Now AB company purchases goods on credit, उधार पे purchases goods on credit for rupees 1 lakh. AB कंपनी ने C लिमिटेड से कुछ गुड्स खरीदे, और वो गुड्स कैसे खरीदे? उधार पर खरीदे, ऑन द प्रॉमिस कि हम ये जो 1 लाख रुपीज वर्थ ऑफ गुड्स हमने खरीदे, हम उसको 2 मंथ्स के बाद पे कर देंगे. सो नाउ हु इज द क्रेडिटर हियर? क्रेडिटर इज योर C लिमिटेड. C लिमिटेड इज द creditor here. AB कंपनी को इसको पैसे देने हैं. So AB company has to pay the amount for credit purchase of goods or services to C Limited. So अगर आपसे पूछते हैं कि इसमें क्रेडिटर कौन है, तो क्रेडिटर है C Limited, जिसको बिजनेस को पे करना है. So क्रेडिटर ऐसे, business owes. What is the keyword? Business owes the amount to the creditor. Business owes the amount to the creditor. Understood? ठीक है. Now the second is your bills payable. Now what is this bills payable? अब भी हमने ये एग्जाम्पल लिया था ना. अब यहाँ पे जस्ट वर्बल एग्रीमेंट था. इट वॉज जस्ट वर्बल एग्रीमेंट. वर्बल एग्रीमेंट मतलब सी लिमिटेड ने बोल दिया था कि मैं आपको पे कर दूंगा. मतलब प्रूफ तो है, वाउचर इज देयर. ओके, तो प्रूफ इज देयर. बट बिल्स पेबल क्या होता है? इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट. इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रॉमिस मेड बाय द बिजनेस to pay the creditor an amount at a later date. यहाँ पर जो AB कंपनी है उसने कोई साइन नहीं करा किसी डॉक्यूमेंट पे कि मतलब हाँ मैं 2 महीने के बाद पे कर दूंगा. इट्स जस्ट थ्रू योर वाउचर्स के थ्रू आप पता कर सकते हो कि इट्स अ क्रेडिट परचेज दैट दे हैव डन. ओके, पर
अगर ये कहेगा कि नहीं नहीं मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, तुम मुझे एक डॉक्यूमेंट साइन करके दो, सी लिमिटेड ए बी लिमिटेड को कहेगा मुझे एक डॉक्यूमेंट साइन करके दो, एंड आई वॉन्ट यू टू राइट इन दैट आई पे यू विद इन 2 months, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम बिल्स पेबल. बिल्स पेबल इट इज a written document which is a promise made by the business to pay the creditor at a later date. इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि क्रेडिटर में इट्स जस्ट वर्बल. वर्बल मीन्स इट्स जस्ट थ्रू वाउचर्स, आप पता करते हो कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो ये ऑब्वियसली दैट पर्सन हैज टू पे. बट यहाँ पे इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज साइंड बाय द बिजनेस. जो भी परचेजर है वो साइन करेगा उसमें, एंड टू पे द क्रेडिटर एट अ लेटर डेट. और अगर ए बी कंपनी बोलती है कि मैं नहीं पे करूंगा, तो ये जो सी लिमिटेड है ये इस बिल पेबल को इट कैन शो इट इन द कोर्ट एज एन एविडेंस दैट देख लो ए बी कंपनी ने यहाँ पे साइन करा था, इट्स अ रिटन प्रूफ. तो ये जो होता है ये ज़्यादा सिक्योर होता है, ये थोड़ा सा अनसेफ होता है क्रेडिटर्स. ओके, तो बिल्स पेबल आर रिटन डॉक्यूमेंट्स. अंडरस्टूड. नाउ what is the keyword of bills payable? Keyword है they are written commitments. They are written commitments to pay at a later date to the creditors. To the creditors. तो ये है they are written commitments made by the business to the creditor. और इसको कौन एक्सेप्ट करता है? Creditor, and they are signed by the purchaser who makes credit purchase. Who makes credit purchase? जो भी credit purchase करता है वो इसको sign करेगा. Understood? Now we will come to another term, that is trade पेबल. ये सारे लिंक्ड है एक दूसरे के साथ. इट इज द टोटल अमाउंट, इट इज द टोटल अमाउंट ओड फॉर बिजनेस क्रेडिट परचेजेस. बिजनेस ने जितना भी क्रेडिट परचेजेस करे हैं of goods and services, it is the total amount owed. ठीक है, it is the total amount owed for business credit purchases of goods and services. तो हमेशा please remember this, trade payable T/P is always equal to creditors. ये formula please everyone remember, plus bills payable. Trade payable is equal to very important. Trade payable is equal to creditors plus bills payable. जो trade payable होगा वो इन दोनों को ऐड करके आपका आता है. Understood? ये वाले हो गए थोड़े रिस्की वाले, बिकॉज यहाँ पर कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है. यू जस्ट हैव द वाउचर्स टू सपोर्ट. अगर क्रेडिटर्स को अमाउंट नहीं पे किया जाता तो क्रेडिटर्स कैन go to the court, but they don't have that much of evidence. But यहाँ पर bills payable में creditors have a written proof. ठीक है, बिजनेस क्या होगा उसमें साइन करेगा, जो भी क्रेडिट परचेज करेगा वो उस बिल्स पेबल पे साइन करेगा एंड क्रेडिटर्स को देगा. सो दीज आर नॉट साइंड. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर साइंड रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रूफ ऑफ क्रेडिट परचेजेस. अंडरस्टूड? तो ट्रेड पेबल इन दोनों को मिलाकर उसको हम बोलते हैं ट्रेड पेबल.
नाउ द वेरी 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 स्टार पॉइंट, जो हमारा स्टार पॉइंट है इस पूरे उसमें, योर स्टार पॉइंट इज, मैंने क्या बोला यहाँ पे, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब मैंने आपको बोला है जो बिजनेस डील करता है। अगर यहाँ पे मेरा जो बिजनेस है AB कंपनी C लिमिटेड से अगर फर्नीचर खरीद रही है, मेरी कंपनी बनाती क्या है, सैंडल्स, सो सैंडल्स आर माई गुड्स, अंडरस्टूड। और मैं इनसे ले रही हूँ फर्नीचर, क्या ले रही हूँ, फर्नीचर ले रही हूँ ₹50,000 ऑन क्रेडिट, उधार पे, अंडरस्टूड। तो क्या C लिमिटेड मेरे क्रेडिटर्स हैं? दिस इज अ वेरी वेरी ट्रिकी पार्ट विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक इन। तो C लिमिटेड हमारे क्रेडिटर्स नहीं हैं, इस केस में दे आर नॉट आवर क्रेडिटर्स, अंडरस्टूड। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने ओनली गुड्स एंड सर्विसेज में डील करा है ऑन क्रेडिट, वी हैव परचेज्ड गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ गुड्स में डील करेंगे जिसमें बिजनेस का मेन डीलिंग है। अगर उसके अलावा हम कुछ भी और चीज खरीद रहे हैं, लैपटॉप क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, फर्नीचर, मशीनरी, वो असेट्स हैं, असेट्स का परचेज ऑन क्रेडिट डज नॉट अमाउंट टू दैट पर्सन जिससे हम खरीद रहे हैं, वो हमारा क्रेडिटर नहीं होगा, ये हमारी लाइबिलिटी होगी। हमको जो ये 50,000 AB कंपनी को पे करना है, दैट इज अ लाइबिलिटी, सॉरी, दिस इज अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस, इट्स अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। और आप C लिमिटेड को क्रेडिटर्स नहीं बोल सकते हो। इफ दिस क्वेश्चन कम्स, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि C लिमिटेड परचेस्ड assets for ₹1 lakh on credit from A Limited. Is A Limited the creditor of C Limited? No. A Limited is not the creditor. तो यहां पे स्टार पॉइंट क्या है? स्टार पॉइंट है परचेज ऑफ assets on credit does not lead to creation of creditors. It does not lead to creation of creditors. It leads to liability. It leads to liability. तो this is a very very important point इस पूरे उसमें। यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, तभी क्रेडिटर्स बनेंगे, तभी बिल्स पेबल होगा, तभी ट्रेड पेबल होगा। इट इज ओनली रिलेटेड टू द योर गुड्स एंड सर्विसेज यू आर डीलिंग इन। अगर आप असेट्स खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो क्रेडिट पे, तो जिससे आप क्रेडिट पे खरीद रहे हो वो आपका क्रेडिटर नहीं है, इट्स जस्ट अ लायबिलिटी विच यू हैव टू पे, अंडरस्टूड। सो प्लीज नोट दिस डाउन। नाउ द अदर टर्म इज डेटर। व्हाट इज इट? Debtor. Don't say debtor. Okay, it's debtor. Debtor. जो क्रेडिटर था उसको बिजनेस को क्रेडिटर को पे करना है। अब यहां पे डेटर में उल्टा है। डेटर इज द पर्सन हु इज गोइंग टू पे टू द बिजनेस फॉर क्रेडिट सेल्स, फॉर क्रेडिट सेल्स मेड बाय द business. So what is a debtor? It is an entity or person who buys, please very very important, क्या buy करते हैं? Goods and services from business on credit. On credit. Who is a debtor? Debtor is an entity. It can be a business or a person who buys goods and services from business on
credit, उधार पे. Understood? So now this is AB Limited and this is C Limited and this is C Limited. AB Limited is our business which deals in laptops. Which deals in laptops. तो लैपटॉप्स इसके गुड्स हैं, ये इसके गुड्स हैं, एसेट्स नहीं है. अब AB लिमिटेड C लिमिटेड को सेल करता है लैपटॉप्स वर्थ ₹5 लाख. 5 लाख वर्थ के लैपटॉप्स वो C लिमिटेड को सेल करता है. तो ऑन क्रेडिट, और ये जो सेलिंग हो रही है दैट इज ऑन क्रेडिट, उधार पे. C लिमिटेड को लैपटॉप्स मिल गए हैं बट दे सेड दैट दे आर गोइंग टू पे लेटर, उधार पे. इन्होंने इसको उधार पे बेचा है. सो नाउ द C लिमिटेड हु हैज टू पे द अमाउंट. C लिमिटेड हैज टू पे AB Limited 5 lakh. So C Limited is the debtor of AB Limited. AB Limited का debtor कौन है? C Limited है. इससे पैसे लेने हैं. AB Limited को C Limited से पैसे लेने हैं. Understood? So who is a debtor? He is a person who has to pay back. He owes. Debtor owes the amount. Okay, debtor owes the amount to business. Creditor में business owes the amount to the creditor, और debtor में debtor owes the amount to the business. Or in other words, you can say it is the amount owed to the business. Because मैं इतना emphasize कर रही हूँ because these words come in your numericals. You should know the difference. Owed, owes. Okay. आपको इसको दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हो? AB लिमिटेड इज ओड एन अमाउंट ऑफ 5 लाख फ्रॉम C लिमिटेड. अंडरस्टूड? सो ये पे कर रहा है, डेटर पे करेगा बिजनेस को, और क्रेडिटर में क्या हो रहा था? बिजनेस को पे करना है क्रेडिटर्स को. अंडरस्टूड? सो अनदर टर्म अब इसके बाद बिल्स रिसीवेबल. जैसे कि बिल्स पेबल हमने करा था. what was that? It was a written document. Same way bills receivable, they are written documents signed by the, कौन साइन करेगा यहाँ पे? ये जो पैसे देगा वो साइन करेगा. signed by the debtor for credit. यहाँ पे साइन बाय द डेटर एंड एक्सेप्ट कौन करेगा? एंड एक्सेप्टेड बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. They are the written documents signed by the debtor and accepted by the business for credit sales of goods and services. It is a promise. It is a promise made by the debtor. Made by the debtor to pay. कौन पे कर रहा है? डेटर पे कर रहा है. To pay certain amount at a specified date. At a specified date. तो पहले केस में डेटर क्या कर रहा था? जस्ट हमारे बीच में हो गया, बिजनेस और डेटर के बीच में डील हो गई और वाउचर मिल जाएंगे. ठीक है, सेल्स वाउचर. पर यहाँ पे इसने रिटर्न प्रॉमिस नहीं करा है डेटर ने कि मैं इतना अमाउंट पे करूँगा. ठीक है, तो अगर कुछ लीगल होता है, डेटर इज अनेबल टू पे, तो आप उसको बहुत स्ट्रांगली, यू कैन नॉट फाइट योर केस.
AB लिमिटेड। बट अगर AB लिमिटेड को थोड़ा भी शक होता है, वो डेटर को बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे आप एक पेपर पे लिख के दो साइन करके कि मैं आपके 5 लाख रुपए वापस करूंगा एट दिस डेट, देन इट टर्न्स इनटू बिल्स रिसीवेबल। दिस डेटर हैज गिवन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, और उसको साइन करेगा डेटर एंड इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द बिजनेस जिसने क्रेडिट सेल करी थी, ठीक है, एंड देन इट कैन बी शोड इन द कोर्ट एज अ प्रूफ। तो ये कम रिस्की है, ये ज्यादा रिस्की है, बिकॉज यहाँ पे आपका रिटन प्रूफ है। अंडरस्टूड। अब थर्ड टर्म, ट्रेड रिसीवेबल। It is the total of debtors plus bills receivable. So what is trade receivable? It is the total amount to be received by the business for credit sale of goods and services. It is the total amount. अब यहाँ पर भी फॉर्मूला प्लीज रिमेंबर, ट्रेड रिसीवेबल is always equal to debtors plus bills receivable. Bills receivable, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर? अब यहां पे भी एक स्टार पॉइंट है, सेम स्टार पॉइंट जो हमारा उसमें था, एंड द स्टार पॉइंट इज, अगर ये बिजनेस क्रेडिट सेल कर रहा है ऑफ असेट्स, देन द पर्सन और द एंटिटी टू whom the goods assets are sold on credit, that person or entity is not our debtor. It is not our debtor. ठीक है? क्रेडिट sale of assets does not lead to creation of debtors. तो मेन हाईलाइट है आपका कि वो हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज ही होनी चाहिए ऑन क्रेडिट। समझ में आ रहा है? क्रेडिट सेल ऑफ असेट्स डज नॉट लीड टू क्रिएशन ऑफ डेटर्स. Debtors are created only through credit sale of goods and services. Of goods and services. इस एग्जाम्पल में ए बी कंपनी लैपटॉप वॉज अ गुड इट वॉज डीलिंग इन. अगर ए बी कंपनी सी लिमिटेड को टेबल्स देती ऑन क्रेडिट, टेबल्स बेचती सी लिमिटेड को ऑन क्रेडिट, तो सी लिमिटेड हमारे डेटर नहीं होते. सी लिमिटेड हमारे डेटर नहीं होते. अंडरस्टूड? क्योंकि हम गुड्स थोड़ी ना बेच रहे हैं ऑन क्रेडिट, इट इज जस्ट असेट्स. ओके, सो दे आर नॉट आर डेटर्स इन दिस केस. दे आर जस्ट, वो हमको पैसा, दे आर लाइक असेट्स फॉर अस. दे आर लाइक assets for us. Understood? So credit sale of assets does not lead to creation of debtors. Debtors तभी बनते हैं जब हम उनको क्रेडिट सेल करते हैं. किस चीज की? Only of the goods or services that the business deals in. Now the last term for today's class is final accounts. Is final accounts. अभी I'm just explaining it in short because फुल चैप्टर्स है इसके ऊपर. ठीक है? सो व्हेन यू विल कम टू दोज चैप्टर्स देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड. बस पर फाइनल अकाउंट्स आप एक तरह से ऐसे सोच लो कि बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. अंडरस्टूड? तो एट द एंड ऑफ द ईयर you prepare some accounts or statements. Not accounts, you make some statements.
you prepare some statements at the end of the year. At the end of the year, you prepare some statements. Now what are these statements? आपने अकाउंट्स बना दिए थे, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस पहले हुए थे, ट्रांजैक्शंस आपने अकाउंट्स बनाए, उन अकाउंट्स से ट्रायल बैलेंस होता है वो बनाया. अब आप क्या बनाओगे? एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल प्रिपेयर, फर्स्ट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट्स योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स जो बनाया जाता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इट टेल्स यू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. इट टेल्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस. बिजनेस का कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, ये P&L अकाउंट, इसको आप ये भी बोलते हो, शॉर्ट में हम बोलते हैं P&L अकाउंट. सो दैट इज द फर्स्ट फाइनल अकाउंट दैट यू प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर. और फिर P&L अकाउंट के बाद आप बनाते हो बैलेंस शीट. बैलेंस शीट B/S short form. It shows you the financial position. It shows you the financial position of business. Position मतलब कि end of the year में आपके पास कितने assets हैं, कितनी आपकी liability है, कितनी आपके कंपनी में कैपिटल है और कितने रिजर्व्स हैं. इट गिव्स यू एन अकाउंट. दैट इज वाई जो बैलेंस शीट होता है इट्स अ फाइनेंशियल पोजीशन. इतना ये है, इतना ये बचा, इतना ये बचा, क्या क्या बचा, असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल जो ओनर लेके आता है, रिजर्व्स, वो सब कितना कितना बचा है वो आपको बैलेंस शीट से पता चलता है, एंड इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन. सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बैलेंस शीट ऑलवेज शोज द फाइनेंशियल पोजीशन. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? इट शोज यू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. लर्न दीज वर्ड्स. जब भी आपको एमसीक्यू में आएगा कि P&L अकाउंट क्या शो करता है तो आपको बोलना है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ बिजनेस को ओवर द फाइनेंशियल ईयर. सो व्हाट आर द फाइनल अकाउंट्स? दे आर द स्टेटमेंट्स prepared at the end of the year and they include P&L account and balance sheet. Okay, so that's it. Please note it down. Kindly subscribe to my channel Simply Commerce and share it with your friends, because you're going to learn all the concepts in detail and we'll be doing a lot of numericals which will give you concept clarity. I guarantee you that. Thank you.